Hello student, today I am going to deliver the lecture second of unit third, that is classification of elements and their periodic properties. Today's topic is about modern periodic table. So as we know that the modern periodic table is based on the modern periodic law here. So first we must know what do you mean by the modern periodic law and what actually this modern periodic law explain us here. So modern periodic law is based on that the physical and chemical property of the all the elements here are the periodic function of their atomic number. That means after every regular interval of, you can say, periodic table, when the electrons are coming here, they have the same properties, that is physical as well as chemical property. And this also suggests that the physical and chemical property of each and every element is depends upon the atomic number here. So as we know that atomic number is depend upon, that is number of electrons. So that is, if there is a, that means कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट है दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर है. Now when we are considering here the periodic table, as we know that in case of modern periodic table, as already learned in the lecture first here, it suggests that कि जो हमारे पास periodic table है it consists of group as well as period here or series here. तो in group there is a you can say vertical arrangement of electron. In a period there is a horizontal arrangement of the electron here. So what the characteristics of period are? Period explain that the whenever there is a addition of electron take place, that is take place in the same valence shell here. That is, if we have considering the period here, then the electrons are added in the same valence shell here. And when the electrons are added in the same valence shell here, they show the same type of the period here. And when the electrons are added here, then generally what happens, the size of an element decreases when we move along the series here. Now as we know generally जब आप periodic table को देखते हो तो हम उसको चार पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं, that is S block, P block, D block as well as F block element, and this is also the characteristics of the whole of the periodic table here. Now we have S block elements here. So S block elements in the periodic table is placed at the right of you can say लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर periodic टेबल here. तो ये स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता है, वहाँ पे आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है. इसमें क्या होता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास किसी भी periodic टेबल के अंदर, वो क्या हमारे पास दैट इज़ NS1 माइनस 1 to 2 है, नॉट माइनस, इट इज़ 1 से लेकर 2 तक. दैट मीन्स कि एस ब्लॉक जो हमारे पास होता है दैट इज वैलेंस शेल होता है, इट ओनली कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज वैलेंस शेल, दैट इज सब शेल जो होता है हमारे पास एस सब शेल, इट कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो दैट मीन्स कि जो एस ब्लॉक होगा हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटेन करेगा. ठीक है, तो दैट्स वाई दे हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 है. तो वैलेंस शेल की अगर हम बात करेंगे तो हम अगर हमारे पास पीरियड फर्स्ट है तो इफ वी हैव द पीरियड फर्स्ट इट मीन्स वी हैव 1, इफ पीरियड सेकंड दैट मीन्स 2, देन 3 एंड 4 है. सो एज तो जैसे जैसे हम पीरियड बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो अगर हम जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के NS1 से लेकर 2 तक. तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी एस ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 electrons. Now the characteristics of S block elements, all the elements are soft metal, they have low melting and boiling point, they are highly reactive, most of them impart color to the flame here. This means कि when we heat up the elements of the S block here, they impart certain characteristics color here. ठीक है, they generally form ionic compounds and they are good conductor of heat and electricity here. Now next we have the P block elements. So this is the block when we know that L value is 1 here. So according to you can say quantum number here, we get principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number here. So N give us an idea about the energy shell here.
ठीक है, दैट्स वाई इट इज NS। तो N जो हमारे पास होगा वो किसकी बात कर गया, हमारे पास एनर्जी शेल की, ठीक है। और जो हमारे पास P होगा और जो S होगा, दिस गिव एन आइडिया अबाउट द सब शेल हियर, या फिर S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। तो वैल्यू ऑफ S is from the L here. So when L is equal to 0, this signify for the S here. When L is equal to 1, this signify for the P here. When L is equal to 2, this signify for the D orbital or D subshell. And when L is equal to 3, this signify for the P here. तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा कि हम किस सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नो, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है वो हमारे पास क्या है, दैट इज NS2। दैट मीन्स कि जो S सबशेल होगा इट इज ऑलरेडी फुलफिल्ड हियर। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर टू द P ऑर्बिटल हियर। तो S ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा और जो P ऑर्बिटल होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन कहाँ से होगी, 1 to 6 है। तो दैट मीन्स P ऑर्बिटल कंटेन्स a maximum number of 6 electron. How it is possible? Because we know that when L is equal to 1, it signifies for the P here. So when we are considering M here, M is equal to -1, 0 and +1. So this signify here कि 3 value for the P here. That is means Px, Py and Pz ऑर्बिटल्स। तो ये जो हमारे पास Px, Py जो ऑर्बिटल्स हैं ये बताता है हमारे पास द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए प्रॉपर डायरेक्शन है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एज वेल एज द z डायरेक्शन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो गए P के, तो Px, Py, Pz, तो ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3, 3 2 या 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल और P ऑर्बिटल इज 6 here. And then whenever we are going to arrange or add these electron in P orbital, then we have to add 1 by 1 here. We cannot add the electron at once here. सारे के सारे एक जैसे नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इसकी क्या है, हमारे पास NS2 and NP 1 to 6 here. This is what we have. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जब हम P ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वो जो एलिमेंट्स होंगे दे कम अंडर द P block here. Now characteristics of P block as considered to the S block. The compounds of these elements are generally covalent. They show variable oxidation state. Oxidation state means the tendency of an element to lose or gain नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो किस तरह के हमारे पास एलिमेंट है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने डोनेट कर सकता है, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या बना सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन है द टेंडेंसी टू लूज 4 एज वेल एज गेन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दे शोड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लाइक नाइट्रोजन हैज द टेंडेंसी टू शो +3, +5 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन शो -1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड व्हेन वी मूव फर्दर here, they have the that is halogens has the tendency has +5 type, +7 type of the oxidation state here. So that's why these elements show variable oxidation state here. So when we move from left to right in a predator, the non-metallic character of the element इंक्रीजेज है। तो इट मीन्स कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो प्योरली आपके पास मेटालिक करेक्टर हैं, लेकिन जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो जैसे जैसे हम पीरियड के लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, नॉन मेटालिक होंगे। तो रिएक्टिविटी जो इन एलिमेंट्स की क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो एंड ऑफ द पीरियड इन नोबल गैस एलिमेंट, जो नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, जो P ऑर्बिटल है दैट इज टोटली फिल्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि इसके डी सबशेल के अंदर हमारे पास या डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा हमारे पास, दिस इज n-1d है। n मीन्स प्रिंसिपल एनर्जी शेल। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है
तो हमारे पास लेट अस सपोज अगर n हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो n माइनस 1 होगा तो ये 0 होगा, तो d हमारे पास होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट आपके पास जो d ऑर्बिटल की बात होगी तो वो तब होगा जब आपके पास n क्या रहेगा 4 रहेगा। तो n 4 दैट मीन्स 4 माइनस 1 3d, तो 3d के अंदर आपके पास क्या होंगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो d ऑर्बिटल एज वी नो दैट d ऑर्बिटल कब आता है जब l आपके पास क्या होता है 2 होगा। जब l 2 होगा तो m आपके पास क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा। तो प्लस माइनस 2 का मतलब -2 -1 0 +1 एंड +2। तो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी जो कि हमारे कौन बताएगा m की वैल्यू। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास वो होता है दिस सिग्निफाई अस अबाउट that is orientation of an electron here. So 5 orientation, and in each orbitals we have 2 electron, and 2 into 5 that is 10 electron. So d orbital has the tendency to accommodate 10 electrons से, और जब भी एडिशन होगी हमारे पास वो पहले होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। we cannot put all the elements in ए सिंगल स्टेप है, हमें एक एक करके क्या होगा इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। there is no p electron filling in this case। the d orbitals are known as transition elements because they have completely filled d orbitals in their ground state in एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर उनका डी ऑर्बिटल क्या होता है फिल होता है, या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है लुक एट दिस होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर वी फाइंड आउट दैट इज वी हैव number of period that is 1 2 3 4 5 6 this is the period down the series, and these are the again we have the you can say period along the series, and down the that is this one, these are called as the group here। इनको हम क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे। दिस इज 1 पीरियड 2 पीरियड 3rd 4th 5th 6th 7th है। सो along अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो हम किसकी बात करेंगे पीरियड की बात करेंगे। जब हम एक एक वर्टिकली देखेंगे तो दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स है। तो इस साइड आएंगे तो हमारे पास पीरियड है, नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होंगे ग्रुप्स होंगे। तो ऊपर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट in the periodic table, and what type of periodic table it is modern periodic table है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो what we find there is S block elements, there is a P block elements, there is some D block elements, and there are some F block elements, and along with this one there is electronic configuration of this element है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो हमारे पास है 6 जो आपके पास ग्रुप बने हैं, ये आपके P ब्लॉक हैं, 2 आपके S ब्लॉक के, और जो 10 हैं ये आपके पास D ब्लॉक के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट वी हैव इन एक्चुअली द पीरियोडिक टेबल के। नाउ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इस तरह से हमारे पास इसके नंबरिंग हो जाएगी, या फिर आप कहोगे कि वी हैव द डिफरेंट पीरियोडिक टेबल इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ D ब्लॉक element, they are all metals with high melting and boiling point. The compounds of element generally paramagnetic, they are mostly show variable oxidations, they are used as a catalyst also here. Now F block element, their electronic configuration is like this one, that is n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1, and s2 here. Now here the filling of in F orbital and D orbital may contain 1 electron, but S orbital is completely filled here because S orbital are considered to be inner orbitals here. So there is a filled in n-1 D subshell, and filling of electron take place D, that is n-2 F orbital, which happen to the इनर ऑर्बिटल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एस पी डी एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे है कि किस ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें। अगर एस में कर रहे हैं तो एस ब्लॉक के, पी में कर रहे हैं तो पी ब्लॉक के, डी में कर रहे हैं तो डी ब्लॉक के, एफ में कर रहे हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम
उनको सिग्निफाई करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे हैव मोस्टली 2 सीरीज, ठीक है, lanthanide as well as actinides, and there are about 14 elements in each series and total number of 28 elements here, ठीक। और जो F block elements होते हैं they are generally placed at the bottom of the Peretti table। तो अगर आप Peretti table की बात करेंगे तो ये जो Peretti table के अंदर नीचे एलिमेंट पड़े हैं इनको हम कहते हैं F block elements। So we have lanthanide series as well as a एक्टिनाइट सीरीज है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास नीचे होंगे, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या कहती हैं, दे ऑल आर मैटर विद ई सीरीज, द प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज एक्टिनाइट एज वेल लैंथेनाइट, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। और सब मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम पूरे पेरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पेरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, देन आपके पास मेटलाइट्स भी हैं। तो हमारे पास हम जनरली क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरियोडिक टेबल जो आपके पास इट कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ द नॉन एलिमेंट्स, और सारे के सारे जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो क्या हमारे पास मेटल हैं। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and they are malleable and ductile here. This is the properties of the metal. Now next we have non-metal. Non-metals are located top of the right hand side of the periodic table. That is means this non-metal is usually comprises a p block element here. Non-metals usually solids or gases at room temperature with low melting and boiling point. They are poor conductor of heat and electricity. That means जो metal की properties हैं वो नॉन मेटल की क्या है, रिवर्स कंडीशन में आएगी। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल आर नाइदर मेलेबल एंड डक्टाइल के। नाउ वी हैव सम ऑफ द मेटलाइट्स, द एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, एंटिमनी एंड टेल्यूरियम शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन हियर they are called as semi metals, and this is also called as a metallites here, ठीक। we have also noble gases which is present at the end of the periodic table, and in this case this noble gases comprises of group 18, और इसमें क्या होगा कि आपकी जो p block elements है they are completely, as you can see, p orbitals are completely filled, each orbital contains 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी, np6 है। तो नोबल गैसेस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, np6, दैट 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 एंड 7p6 है। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, noble gases है। and noble gases are generally called as inert gases because they have little tendency to take part in chemical reaction है। why? because इसके जो outermost shell है वो completely filled है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो दैट्स वाई ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड नोबल गैस एलिमेंट, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द inert gases because they do not show any reaction here. Now we have some of other characteristics of elements in the periodic, that is representative elements. तो element of group first and second here, that is S block, and group 13 to 17 that is P block. तो S block and P block elements are called as the representative elements or main represented elements of the periodic table के। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल के। नाउ नेक्स्ट वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कंसिस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एस एंड पी ब्लॉक है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सेंटर की में होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर इन बिटवीन डी ऑर्बिटल, तो इसलिए हम इनको कहाँ पे रखते हैं, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर कंसिस्ट ऑफ एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक बहुत ही
रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको हम यूरेनियम कहते हैं, और यूरेनियम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो हमें ऐसा देखा गया कि जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स है, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। सो व्हाट यू मीन बाय दिस ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दैट कि हम क्या करते हैं यूरेनियम के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो एक नया एलिमेंट निकलेगा, और वो जो नया एलिमेंट निकलता है उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, दैट इज़ इन द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस करेंगे, इन एफ ब्लॉक। तो एज वी नो दैट कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाय दिस इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दिस इज द सीरियम है हुज एटॉमिक नंबर इज 58 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 57 के बाद क्या है, दैट इज 72। तो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फिक्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो बिकॉज दे आर इनर्ट, दे आर इंसर्ट बिटवीन द डी एज वेल एज द एस ब्लॉक एलिमेंट, जिस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड about this topic of about modern periodic law as well as the modern periodic table, and we know that the modern periodic table is based on the modern periodic law here, and modern periodic law जो हमारे पास है वो किसके बेसिस के ऊपर है, दैट इज अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और अटोमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन easily characterize the chemical and physical property of each and every elements. Okay beta, thank you, happy learning and all the very best here.